morning, everyone. Today with us we have Rajvi Shah Mehta, Technical Manager of Geotechnical Engineering from Bhumi Research Center, Surat. She is an innovative geotechnical engineer having a comprehensive 3 years of experience with a sound proficiency of soil and rock behavior and programming languages. Expertise includes data interpretation, field investigations, coding, and the reporting work. She has also worked with the different projects of both government and private agencies like L&T, Tata, DFCC, GPHCL, GHB, etc. I would like to invite, on the behalf of the Civil Engineering Department, Parel University, to get the benefit of the webinar on the topic Necessity of the Soil Investigation in the Construction. Raji ma'am, you can please continue. Okay. Thank you, Vanshika ma'am, for this kind introduction. Now we start our today's topic. Okay. So good morning, everyone. I'm audible to everyone. Yes, you will be audible. Okay. So first of all, I would like to thank Parul University Civil Engineering Department for contacting me for giving this webinar. So thank you all for this. Now we come to our topic, and our today's webinar topic is necessity of soil investigation in construction. Uh, First, if I go through what we will see during this session is introduction, then objectives of soil investigation, then phases of soil investigation, methodology, and last reporting, how the report is prepared and all. Okay, so first introduction. First of all, I I would like that this topic, if we split this topic into part, then necessity of soil investigation in construction. We know what is construction and all, but the soil investigation, this word, first of all, we have to understand the meaning of this word soil investigation. अगर हम सॉइल इन्वेस्टिगेशन को दो पार्ट में स्प्लिट करेंगे तो फर्स्ट इज सॉइल एंड सेकंड वन इज इन्वेस्टिगेशन. सॉइल अगर मैं लेमन लैंग्वेज में बोलूं तो सॉइल इज मिट्टी, and investigation to find out, to determine its properties, its engineering properties, its chemical properties. Matlab, what is soil investigation? The soil investigation is the process to determine surface and subsurface soil conditions in the area of construction, proposed construction, which influence the design and construction. Like if we talk here, we talk about the necessity of soil investigation in construction. So engineering properties are necessary. We have to find out the engineering properties of soil. We have to find out the chemical properties of soil. We have to find out the index properties of soil, and these all things we have to find out for the construction purpose and for the design purpose, because these all things influence the design and construction. What material we can use in construction, these all things influence these all parameters influence these things also. So in this manner, soil investigation is to determine surface and subsurface soil condition. अगर लेमन लैंग्वेज में बोलूं तो सॉइल इन्वेस्टिगेशन मतलब मिट्टी की जो भी प्रॉपर्टीज है उसको हमें ढूंढना है कि वो प्रॉपर्टीज कैसी है. अब we can say this soil investigation is soil exploration also. And you know guys, soil investigation cost nothing. I mean it cost only 0.05 to 0.2% of total project cost. So it is very negligible cost. But if we do the proper soil investigation, then total project cost can be reduced. If we do the proper soil investigation, then total project cost can be reduced, very reduced, and it costs nothing. So it is necessary to do, we should do soil investigation before any construction. ऐसा नहीं है, पहले ऐसा होता था कि भाई अगर ये
ये बिल्डिंग बनाना है, चलो या इसकी कंजर्वेटिव साइड या एसबीसी ले लो और ऐसा फाउंडेशन बना लो। पर अभी ये अभी अगर हम अभी की बात करें तो ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर बन रहे हैं कि अगर मैं वो कर लूं कि चलो कंजर्वेटिव साइड ले लो तो मेरे स्ट्रक्चर्स बहुत हैवी बन जाएंगे और मेरी प्रोजेक्ट कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगी। पर अगर मैंने प्रॉपर सॉइल इन्वेस्टिगेशन किया होगा तो ये चीज हो सकती है कि प्रॉपर सॉइल इन्वेस्टिगेशन से मुझे वो सॉइल की कितनी एसबीसी है वो मिल पाएगी और उसके अकॉर्डिंगली मैं पूरा फाउंडेशन डिजाइन सब कुछ कर पाऊंगी, तो मेरा जो सेक्शन है पूरे वो सब लाइटर बन पाएंगे और जैसे ही सेक्शन लाइटर होंगे तो मेरी प्रोजेक्ट कॉस्ट अल्टीमेटली कम होगी। सो फॉर दिस रीजन सॉइल इन्वेस्टिगेशन इज नेसेसरी। नाउ अगर अभी फॉर रिसेंट हम बात करें तो what are the critical infrastructures, and these critical infrastructures need soil investigation before their construction. So these are the critical infrastructures like bridges and tunnels, energy sector and communication system, major building, underground structure, hydraulic structure, roads, railways, subways, airports, seaports. These all are the critical infrastructure, and before construction of these all things soil investigation is necessary. Here you can see this basement excavation, right now in Gujarat there are 5 cities where almost in if I work in Surat, and if I talk about Surat, then almost all project has basement facility. So we have to construct basement, 1 level basement, 2 level basement, 3 level basement. So for 3 level basement we have to put our foundation almost at 12 to 13 meter depth, and for that reason I have to do soil investigation properly, because in these deep excavation we have to हमें बहुत सारी टेक्निक्स भी यूज करनी पड़ेगी, वो पाइल ड्राफ्ट, डायाफ्राम वॉल, ये सारी टेक्निक्स यूज करके हम ये एक्सकेवेशन कर पाएंगे। और ये सारी टेक्निक्स यूज करने के लिए मुझे डिजाइनिंग जो करनी है उसके लिए मुझे सॉइल की प्रॉपर्टीज जाननी बहुत जरूरी है। अब इफ वी टॉक अबाउट दिस हाई राइज स्ट्रक्चर, देन अभी तो हाई राइज स्ट्रक्चर्स बहुत ही बन रहे हैं, और रिसेंटली अगर बात करें तो इन गुजरात गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड 5 cities with 70 stories building, maximum 70 stories building. So अगर अभी पहले मुंबई वगैरह में बनते थे, अभी यहाँ पे भी इतने स्टोरीज के बिल्डिंग बनेंगे, तो इसके लिए प्रॉपर सॉइल इन्वेस्टिगेशन नेसेसरी है। और प्रॉपरली अगर सूरत की बात करें तो सूरत की जो सॉइल है वो ऊपर की सॉइल ब्लैक कॉटन सॉइल, और अगर आप 30 मीटर 40 मीटर डेप्थ तक ही चले जाओगे तो भी वो सॉइल ही है, वहां पे रॉक नहीं, ज्यादातर रॉक नहीं है। तो उसी रीजन से सॉइल इन्वेस्टिगेशन नेसेसरी है, क्योंकि अगर हम सॉइल की बात करें ना तो ब्लैक कॉटन सॉइल इज वेरी मच प्रॉब्लमेटिक सॉइल फॉर कंस्ट्रक्शन। सो सूरत में ऐसी मिट्टी है, तो सूरत की बात अगर मैं करूं तो सूरत में अभी पूरा मतलब ये सारी चीज अगर 70 स्टोरी बिल्डिंग बनने वाले होंगे तो उसके लिए भी प्रॉपर सॉइल इन्वेस्टिगेशन नेसेसरी है। आप अगर देखेंगे एम्बैंकमेंट कंस्ट्रक्शन तो वो भी ये सारी चीज ऐसी ही है जिसमें सॉइल इन्वेस्टिगेशन वेरी मच नेसेसरी। टनल कंस्ट्रक्शन, एनवायरमेंट, लैंडफिल, ये स्टोन कॉलम देखेंगे। फिर आपने यू मस्ट हियर अबाउट दिस ऑफशोर जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग, ऑनशोर जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग। अभी जो हम बात कर रहे हैं ऑन लैंड तो वो ऑनशोर जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग हो गया, ऑफशोर मतलब मराइन स्ट्रक्चर्स होंगे तो ऑन दैट फॉर दैट रीजन ऑफशोर जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग इज नेसेसरी। सो दिस ऑल द थिंग्स we covered, we see that in these all things soil investigation is necessary. Now next point is what challenges we have to face during this सॉइल इन्वेस्टिगेशन। क्या क्या चैलेंजेस हमें फेस करनी पड़ती है ये सॉइल इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो पहली चीज कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल जो होती है ना वो डिफरेंट अप्रोच फॉर मतलब वेरियस स्टेट्स ऑफ सॉइल कॉम्पैक्शन नेसेसिटेट्स डिफरेंट अप्रोच फॉर जियोटेक्निकल इन्वेस्टिगेशन। जैसे ये नेचुरल सॉइल डिपोजिट, या ये आप फोटो देख रहे हैं फर्स्ट फोटो, इसमें नेचुरल सॉइल डिपोजिट है। आप ये सेकंड फोटो देखेंगे तो उसमें ये रोलर से हम सॉइल को कॉम्पैक्ट कर रहे हैं। और ये 2 फोटो है जो इसमें सॉफ्ट सरीड सॉइल है, यहाँ पे देख रहे हैं आपके कोई दलदल जैसी सॉइल है, वो दलदल में फंस रहा है। तो
डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल है, और ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल के लिए कौन किस टाइप का अप्रोच हमें यूज करना है वो भी डिफरेंट होगा। तो ये एक टाइप का चैलेंज है कि कौन से में कौन सा यूज करना है, वो वी हैव टू डिसाइड बिफोर डूइंग दिस। सो अगर मैं डीप में बताऊं तो पहले जैसे हमने ये नेचुरल सॉइल डिपॉजिट के बारे में बोला था, तो नेचुरल सॉइल डिपॉजिट, तो वहां पे वो क्या होता है, जैसे कि मेरे पास एक प्लॉट है, वहां पे मुझे कुछ कंस्ट्रक्ट करना है, मेरी साइट है वहां पे कुछ कंस्ट्रक्ट करना है, तो वहां पे पहले से ही नेचुरल सॉइल है, एट दैट साइट देयर इज नेचुरल सॉइल फ्रॉम वेरी बिगिनिंग, वहां पे है ही, और उसी पे मुझे कंस्ट्रक्ट करना है। मुझे चेक करना है कि मेरा स्ट्रक्चर वहां पे बन पाएगा, अगर बनाना है मुझे तो कितनी डेप्थ तक मुझे जाना है, तो वो मुझे नेचुरल सॉइल पे ही सब कुछ डिसाइड करना है। अगर वो सॉइल प्रॉपर्टी प्रॉपर नहीं है तो क्या प्रिकॉशन लेके मुझे करना पड़ेगा, वो सारी चीज मुझे टेस्ट करनी है। तो वो नेचुरल सॉइल डिपॉजिट हुआ, तो वहां पे हमें फील्ड इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा, लाइक एसपीटी टेस्ट करना पड़ेगा, सीपीटी टेस्ट करना पड़ेगा, बोरहोल ड्रिल करना पड़ेगा, ये सारी चीज करके मुझे सैंपल कलेक्ट करने होंगे, और वो सैंपल मुझे लेबोरेटरी में लाके टेस्ट करके फिर एक पूरा एनालिसिस करना पड़ेगा कि वहां पे वो किसनी प्रॉपरली वो स्ट्रक्चर बन सकेगा या नहीं बन पाएगा, बनाना है तो कितनी डेप्थ तक हमें जाना पड़ेगा, कौन सा फाउंडेशन यूज करना पड़ेगा, तो एक्सेट्रा चीज हमें देखनी पड़ेगी। अगर दूसरी दूसरी जैसे ये हमारा सेकंड पिक्चर था, ये कि रोलर है और ये कॉम्पैक्ट कर रहे हैं, तो वो कौन सी चीज है कि कई बार आपने देखा होगा कि किस जगह पे हमें सॉइल को कॉम्पैक्ट करना पड़ेगा, तो कॉम्पैक्ट करना पड़ता है, तो बाहर से हम सॉइल लाते हैं और उस जगह पे कॉम्पैक्ट करते हैं। तो सॉइल हमें एक किसी जगह से लानी है और दूसरी जगह पे उसे डंप करके कॉम्पैक्ट करनी, तो वो सॉइल वहां पे डंप करने के लिए प्रॉपर है या नहीं है, फिलिंग के लिए वो प्रॉपर है या नहीं है, वो चेक करना होगा। तो वो दूसरा अप्रोच हो गया कि मुझे सॉइल बाहर से लानी है और बाहर से लाके उसके सारे लेबोरेटरी टेस्ट करने हैं, और उसके अकॉर्डिंगली मुझे ये कॉम्पैक्शन करना है रोलर से। तो यहाँ पे वो पूरी मैनमेड प्रोसेस हो गई, तो मुझे कॉम्पैक्ट हमें खुद से लेबर से करना है। तो दिस इज इन दिस टाइप ऑफ थिंग कंट्रोल इज पॉसिबल। अगर मेरा कॉम्पैक्शन प्रॉपर नहीं हो रहा है, मैं वापस उसे कॉम्पैक्ट कर सकती हूँ, पर नेचुरल सॉइल डिपॉजिट में वो पॉसिबल नहीं है। नाउ ये जो हमारा थर्ड पिक्चर था, देयर इज सॉफ्ट स्लरीड सॉइल। So in soft slurried soil, if you see in soft slurried soil, then special techniques are necessary, because in that soft slurry soil, JCB is not JCB cannot go there, and it is very much soft. Then we cannot put any heavy equipments there. So sampling techniques are different for this type of soil. Some field tests are only possible because of these soil properties, because of this this is very much a soft soil, so if I took a very heavy equipment there, then it is not possible there. Okay, so this thing, like different type of soil compacted states, different types of geotechnical investigation approach. Now where various structure represent different methodology of soil investigation, like various structure in the sense low story building, high rise building, ultra high rise building, ये सबके लिए हमारा अप्रोच अलग अलग होगा। लो स्टोरी के लिए मुझे इतनी डेप्थ तक चला जाऊं तो इट इज वेरी मच ओके, हाई राइज के लिए इतनी स्टोरी का बिल्डिंग है, मुझे ये करना होगा, और अल्ट्रा हाई राइज बिल्डिंग है तो मुझे ये सारा भी जब चेक करना है तो मुझे ये करना होगा। तो ये सब के लिए भी अप्रोच हमारा डिफरेंट हो जाएगा। अब हम दूसरी चीज कि कंस्ट्रक्शन इन कंजेस्टेड एरिया, तो भी हमारा अप्रोच चेंज हो जाएगा। कंजेस्टेड एरिया मींस इफ यू कैन सी दिस इन पिक्चर दैट this area is covered like covered with one side from one side with road, and from three side with structures, with existing structures. So here if we want to, you can see these here piled wall is made for this deep excavation, and you can see very easily that here we have to maintain this for deep excavation. We have to do this because we do not disturb our existing structure. We do not want any collapse in our existing structure. So in congested area we have to do other approach. We have to go for other approach of geotechnical investigation. Okay, so
And in this picture you can, if our area is liquefied zone, our area is earthquake prone zone, so in that area also we have to do some other analysis also. So our approach is different in that area also. We have to do liquefaction analysis, because in due to this liquefaction you can see this much collapse is there due to this liquefaction. So here also our approach differs. Now, our second topic of today, that objectives of soil investigation. Soil investigation का objective क्या है? तो first objective is assess the general suitability of site and groundwater condition. We have to assess the general suitability of site and groundwater condition. Groundwater कैसा है, groundwater कितनी depth पे है, ये सब चीज जाननी बहुत जरूरी है, क्योंकि ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन अगर मुझे पहले से ही पता होगा कि 3 मीटर डेप्थ पे हमारा ग्राउंड वाटर है और हमारी फाउंडेशन डेप्थ 5 मीटर पे है, तो वहां पे वाटर आने ही वाला है ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन। जब हम एक्सकेवेट करेंगे पीट, तब वहां पे वाटर आने ही वाला है, तो उसको रोकने के लिए क्या प्रिकॉशन लेने हैं, तो अगर मुझे पहले से ही वो चीज पता होगी तो उस टाइम पे डिफिकल्टी नहीं आएगी। बट इफ आई डोंट नो दैट यहाँ पे वाटर आ रहा है और अचानक से पानी आ जाएगा, तो मेरे लिए भी काम करना डिफिकल्ट हो जाएगा कंस्ट्रक्शन during the construction. So first objective is assess the general suitability of site. Site की general suitability क्या है, and water ground water condition क्या है, वो assess करना हमारा first objective है. Then second one is select. ये सब हमने चीज कर ली, हमने soil की सारी properties निकाल ली, फिर ground water condition वो sample collect कर लिए, सब चीज हो गई। उसके बाद ये सारा एनालिसिस हो गया, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या आता है, तो फिर हमें ये प्रॉपर्टीज हमें पता होगी तो हम क्या कर पाएंगे, तो टाइप एंड वी कैन सिलेक्ट द टाइप एंड डेप्थ ऑफ फाउंडेशन, वी कैन कैलकुलेट द बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, एंड वी कैन ऑल्सो एस्टिमेट द मैक्सिमम प्रोबेबल सेटलमेंट। वी कैन कैलकुलेट ऑल these things by using this analysis of soil and by this groundwater condition. We can do all these things. So this is the second objective of soil investigation. Now third one is suggest remedial action for possible difficulties during construction. जैसे मैंने आपको बताया कि ग्राउंड वाटर हमें मिल गया, तो ग्राउंड वाटर अगर मुझे मिल रहा है तो मुझे क्या डिफिकल्टी आएगी कंस्ट्रक्शन में, तो वो चीज हमें पहले से ही रेमेडियल एक्शन देने हैं। अगर सॉइल हमारी प्रॉपर नहीं है, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे सॉइल में बहुत सारी स्वेलिंग प्रॉपर्टीज है, तो ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए मुझे पहले से ही रेमेडियल मेजर देना है कि भाई यहाँ पे आप ये ट्रीटमेंट कर लो, तो इससे ट्रीटमेंट के बाद फाउंडेशन करना, तो आपको आगे जाके प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो वो सजेस्ट रेमेडियल एक्शन वो मुझे सॉइल इन्वेस्टिगेशन करूंगी तो ही पता चलेगा, तो वो भी एक वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सॉइल इन्वेस्टिगेशन। नाउ एंश्योर सेफ्टी ऑफ एग्जिस्टिंग, जैसे हमने पिछली वाली स्लाइड में देखा था कि कंजेस्टेड एरिया में मुझे करना है, तो वहां पे मुझे एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर की सेफ्टी का भी पहले ध्यान रखना है, तो वो भी हमारा एक ऑब्जेक्टिव है, एंश्योर द सेफ्टी ऑफ एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर। एंड देन लास्ट वन, सिलेक्ट सुटेबल कंस्ट्रक्शन मटेरियल एंड टेक्निक्स बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी एंड इकोनॉमी। आफ्टर ऑल दिस एनालिसिस एंड ऑल दिस कैलकुलेशन, वी हैव टू सिलेक्ट द सुटेबल कंस्ट्रक्शन मटेरियल बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी, मतलब वहां पे क्या अवेलेबल है और इकोनॉमिकल क्या पड़ रहा है और हमारे सॉइल के साथ क्या मैच हो रहा है, ये सब चीज देख के हम ये सब कर पाएंगे। तो ये for all these reasons soil investigation is very much necessary. Now the next topic is stages and phases of soil investigation. अगर आप जैसे बात करें, अगर मैं बात करूं स्टेजेस और फेजेस ऑफ सॉइल इन्वेस्टिगेशन की, तो हम देखते हैं कि जैसे फर्स्ट हमारा है recognition survey, then second one is preliminary investigation, third one is detailed investigation, and लास्ट इज रिपोर्टिंग। मतलब स्टेजेस क्या होते हैं, सॉइल इन्वेस्टिगेशन का स्टेज क्या होता है, जैसे अभी किसी का अभी मेरे पास कोई इंक्वायरी आएगी कि चलो यहाँ पे सॉइल इन्वेस्टिगेशन करना है, तो मेरे स्टेज क्या रहेंगे, तो पहले जैसे ही मेरे पास इंक्वायरी आएगी कहीं से भी के सॉइल इन्वेस्टिगेशन करना है, तो फर्स्ट स्टेज मेरा आएगा रेकग्निशन स्टेज। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि मुझे पहले साइट की सारी इंफॉर्मेशन, सारा बैकग्राउंड सब कलेक्ट करना है। मेरे पास कभी भी इंक्वायरी
इंक्वायरी आएगी तो मुझे पहले उनसे पूछना पड़ेगा आपकी साइट कहाँ पे है, मुझे एड्रेस दीजिए, मुझे पहले साइट विजिट करनी होगी, साइट विजिट के बाद पूरी सब सुटेबिलिटी चेक करनी पड़ेगी कि वहां पे कैसे कौन से इक्विपमेंट से मैं काम कर पाऊंगी, वहां पे कैसा अवेलेबिलिटी है, हमारा इक्विपमेंट वहां पे जा पाएगा, काम हो पाएगा, वो साइट की सुटेबिलिटी है, वहां पे एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है, तो वो सब चीज मुझे वो रेकग्निशंस में सब मुझे कलेक्ट करने, सारे डेटा, पूरी साइट की इंफॉर्मेशन। अगर वहां पे कुछ आजू बाजू में कुछ मतलब रिवर पास हो रही है या फिर कुछ वाटर इंटेक वाला कुछ है या फिर कोई वेल है, कुआ है, ऐसा कुछ है, तो आई हैव टू फाइंड आउट ऑल, आई हैव टू कलेक्ट ऑल दिस थिंग्स इन दिस स्टेज। सो फर्स्ट जैसे ही किसी कोई बंदा बोलता है कि सॉइल इन्वेस्टिगेशन करना है तो फर्स्ट स्टेज यही आएगा, फर्स्ट स्टेज इसमें उससे ये सारी चीज कलेक्ट करनी पड़ेगी क्योंकि ये सारी चीज ही उसे आगे वाले स्टेप में हेल्पफुल रहेगी, तो ये हमारा फर्स्ट स्टेज है। नाउ इफ आई टॉक अबाउट द सेकंड स्टेज, देन दैट इज प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन। यू गाइज वेरी वेल नो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन। प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में हम क्या करेंगे कि हम डिसाइड करेंगे, हमें डिसाइड करना है, पहले हमने पूरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर दी, कौन सा स्ट्रक्चर है, कितनी स्टोरी का स्ट्रक्चर है, कहाँ पे साइट है, लोकेशन क्या है, फिर आजू बाजू में क्या है, कुछ पानी वाला वाटर बॉडी है आजू बाजू में, ये सारी चीज हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली। फिर नेक्स्ट स्टेज हमारा जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन है, तो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में हम क्या करेंगे, इन प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन वी डिसाइड लोकेशन एंड नंबर ऑफ बोरहोल। Now we have a type of structure, we have the location of structure, so based on these things we have to decide the location and number of boreholes, get how many number of boreholes we have to do in this particular for this site. So in preliminary investigation, deciding location and number of boreholes are there. Now deciding any specific test is required. I think first stage we came to know that here this type of structure is built up. So for this structure, any specific test is if required, then we have to do that type of test. Like if some type of structure is there, then we have to go some particular type of shear test. So if this structure is this type, so we have to decide that we have to do this type of shear test in for this depth. तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है, ये सारी जो डिटेल्स है, वो सारी चीज प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में डिसाइड होती है। अब प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन हो गया, उसके बाद हमारा थर्ड स्टेज आया, और थर्ड स्टेज इज डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन। अब डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन में सारा एग्जीक्यूशन होगा, जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में डिसाइड हुआ है वो सारी चीज हमें डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन में एग्जीक्यूट करनी है। मतलब अगर हमने डिसाइड किया 2 बोरहोल्स करने हैं, तो 2 बोरहोल्स हमें वो डिसाइड हुआ प्रिलिमिनरी में, डिटेल्ड में हमें वो एग्जीक्यूट करना है। उसके बाद वो एग्जीक्यूट करके वो सारे सैंपल्स हमें लेबोरेटरी में लाने हैं, लेबोरेटरी में उसका सारा टेस्ट करना है, ग्राउंड वाटर टेबल हमें साइट पे मेजर करना है, ये सारी चीज, these all things include in detailed investigation. And after this we have now site information, we have now preliminary investigation data, we have now detailed investigation data, and so we have to compile all this data, and we make one report, and that is reporting of results. So this in this 4 stage soil investigation is completed. Now if here we see the detailed of all these things. Preliminary investigation, as I told you, that to assess the need for detailed investigation, then determine the depth, thickness, extent, composition of each layer within the zones affected by foundation pressure. जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे डेप्थ डिसाइड करनी होगी, थिकनेस डिसाइड करनी होगी, कंपोजिशन ऑफ ईच लेयर सब डिसाइड करना होगा। देन लैब और फील्ड टेस्ट कौन से करने हैं, वो सब प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में डिसाइड होगा। अब फॉर स्मॉल प्रोजेक्ट, अगर एक बंगलो ही बनाना है और यही करना है, तो मतलब प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में इतनी चीज, यूनिफॉर्म स्टेटा है तो क्या क्या सफिशिएंट होगा, वो सब चीज डिसाइड होगी। और बोरहोल्स से करना है, ट्रायल पिट से करना है, कैसे करना है, वो सब चीज होगी। नाउ इन डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन,
डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन में हम क्या करेंगे, तो अगर हमारे ये बिग प्रोजेक्ट्स है तो उसमें किस तरीके से सैंपलिंग हो गया, हमें एक एक्सटेंसिव प्लानिंग बनाना पड़ेगा कि सैंपलिंग कैसा होगा, कौन सी डेट पे कौन सा होगा, कौन सी डेप्थ पे हमें अनडिस्टर्ब सैंपल लेना है, कौन सी डेप्थ पे हमें एसपीटी टेस्ट करना है, तो वो सब एक एक्सटेंसिव प्लानिंग होगा। उसके बाद ये सब होके फिर एडिशनल बोल होल्स अगर करने होंगे तो उसका लोकेशन, क्योंकि प्रिलिमिनरी में हमने इतना डिसाइड कर लिए, उसके बाद डिटेल्ड में हमें एग्जीक्यूट करना है। और ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन अगर हमें लग रहा है कि नहीं ये साइट का ये जो एरिया है यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, तो हमें यहाँ पे एक बोर एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, तो वो सारी चीज हमें यहाँ पे करनी है, क्योंकि एडिशनल बोर्स नेसेसरी है, कंफर्मेटरी बोर्स नेसेसरी है, वो भी डिटेल्ड में आएगा। लाइक मेरे पास एक मैंने पूरा टेस्ट कर लिया, टेस्ट के बाद एग्जीक्यूशन चल रहा है, उसके बाद कुछ डाउट आ रहा है, वो मतलब एक्सकेवेशन किया तो एक्सकेवेशन में कुछ डेटा मैच नहीं हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो फिर क्लाइंट वापस करवाएगा कंफर्मेटरी बोर साइट, उसके बाजू में एक कंफर्मेटरी बोर करवाएगा, क्योंकि हमने जो रिपोर्ट दिया था उसमें तो ये नहीं दिख रहा था और अभी ये एग्जीक्यूशन हुआ तो उसमें ये दिख रहा है, तो कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, तो उसके लिए कंफर्मेटरी बोर आता है, तो वो सब चीज डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन में आती है। नाउ जैसे हमने देखा कि ये सब हो गया, अभी आपको पूरा पता चल गया कि एग्जैक्टली फ्लो क्या होता है सॉइल इन्वेस्टिगेशन में, कि पहले ये हमने सर्वे किया, ये डिसाइड हुआ, डिसाइड होने के बाद ये एग्जीक्यूट हुआ, और ये एग्जीक्यूट होने के बाद रिपोर्ट बना। अभी डिसाइड, तो डिसाइड में क्या चीज डिसाइड करनी है, तो नंबर ऑफ बोरहोल्स डिसाइड करने, वी हैव टू डिसाइड द नंबर ऑफ बोरहोल्स, वी हैव टू डिसाइड द डेप्थ ऑफ बोरहोल्स, वी हैव टू डिसाइड द लोकेशन ऑफ बोरहोल्स। सो ये सारी चीज कैसे डिसाइड होती है तो वो देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेप्थ ऑफ एक्सप्लोरेशन, डेप्थ ऑफ बोरहोल कैसे डिसाइड होता है, तो डेप्थ ऑफ एक्सप्लोरेशन डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, टोटल वेट, सॉइल प्रोफाइल। सो टाइप ऑफ स्ट्रक्चर क्या है, अगर हैवी वेट है, लाइट वेट है, टोटल सॉइल प्रोफाइल कैसी है, मतलब अगर थोड़ा अंदाजा हो कि यहाँ पे यूनिफॉर्म स्ट्रेटा आ रहा है या फिर बहुत वेरिएंट स्ट्रेटा है, तो वो सारी चीज के अकॉर्डिंगली डेप्थ ऑफ एक्सप्लोरेशन डिसाइड होता है। फिर डेप्थ ऑफ बोरिंग कैसे डिसाइड होगा, तो डेप्थ ऑफ बोरिंग शुड बी ग्रेटर देन सिग्निफिकेंट डेप्थ। अब सिग्निफिकेंट डेप्थ क्या है, सिग्निफिकेंट डेप्थ मींस 1.5 द डेप्थ ऑफ फाउंडेशन। हम फाउंडेशन हमारे मतलब सॉइल इन्वेस्टिगेशन में उसकी इफेक्ट कहाँ तक रहती है, तो वो मैं चीज आपको बताऊं कि मेरा फाउंडेशन जिस डेप्थ पे है वहां से 1.5 टाइम्स द डेप्थ ऑफ फाउंडेशन जितना हमारा प्रेशर बल्ब होता है, उतने एरिया की सॉइल की प्रॉपर्टीज हमारे स्ट्रक्चर पे अफेक्ट करती है। तो मिनिमम डेप्थ ऑफ बोरिंग हमारा इतना तो होना ही चाहिए, आफ्टर द डेप्थ ऑफ फाउंडेशन 1.5 टाइम्स द डेप्थ ऑफ फाउंडेशन। You guys understand na, like if my depth of foundation is 3 meter and my size of foundation is 3 meter, 3 by 3 my size and my depth of foundation is 3 meter, then after 3 meter I have to go 3 into 1.5, that is 4.5 meter, that is my total depth of exploration is 3 plus 4.5, that is 7.5 meter. So it is necessary, we have to go up to 7.5 meter. If we can go 10 meter then it is really good, but we cannot go like up to 6 meter, up to 5 meter. If my depth of foundation is 3 meter, we have to go up after 3 meter we have to go 1.5 into 3. Okay, now lateral extent of exploration, like lateral extent means number of boreholes. We as we talked earlier that number of boreholes is decided in preliminary investigation, though. So वो कैसे डिसाइड होगा, तो उसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अगर यूनिफॉर्म स्ट्रेटा है पूरी साइड पे, अगर मुझे लग रहा है मैंने वहां पे आसपास में कुछ किया हो काम और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे यूनिफॉर्म स्ट्रेटा ही है, तो लेस नंबर ऑफ बोर होल्स हो गए। और वेरिएशन बहुत ज्यादा है, मतलब लेवलिंग डिफरेंस है, वेरिएशन बहुत ज्यादा है, अगर ऐसी कोई चीज होगी तो मुझे मोर नंबर ऑफ बोर होल्स करने पड़ेंगे, क्योंकि वेरिएशन ज्यादा है तो मुझे नंबर ऑफ बोर होल्स बढ़ाने पड़ेंगे, तो ही मुझे पूरी साइड की एग्जैक्ट कंडीशन का पता चल पाएगा। थर्ड वन इज कोडल प्रोविजन। तो कोडल प्रोविजन क्या है, ये सारी चीज के लिए जो दो चीज हमने की उसके लिए कोडल प्रोविजन क्या है, तो 1892 में कोडल IS 1892 है, उसमें पूरा दिया हुआ है कि अगर स्मॉल बिल्डिंग है तो 1 बोर होल और 1 ट्रायल पिट इन सेंटर इज इनफ। इफ कॉम्पैक्ट प्रोजेक्ट है तो 5 बोर होल तो करने ही पड़ेगी मिनिमम। अगर लार्ज प्रोजेक्ट है तो जियोलॉजी और टेरेन वो कैसा है, मतलब लेवल डिफरेंस है या फिर वेरिएशन आ रहा है स्ट्रेटा में,
तो ये सारी चीज के अकॉर्डिंग हम लार्ज प्रोजेक्ट में हमें ये करना पड़ेगा ज्यादा नंबर ऑफ बोरहोल्स, और अगर स्मॉल प्रोजेक्ट है तो 5 नंबर ऑफ बोरहोल्स करने पड़ेंगे। तो ये सारी चीज इंपॉर्टेंट है। नाउ methods of exploration in soil, uh, like mainly two methods, up to here we see that stages देख लिए। अब सब हो गया, अब हमें पूरा ओवरव्यू तो मिल गया कि किस तरीके से क्या करना है। तो अब हमें क्या करना है कि मेथड्स ऑफ एक्सप्लोरेशन इन सॉइल, मतलब सॉइल एक्सप्लोरेशन की मेथडोलॉजी क्या रहेगी। तो मेथडोलॉजी में पहला आएगा हमारा मेनली टू मेथड, ओपन एक्सकेवेशन, बोरिंग। मतलब हम जैसे मैंने बताया ट्रायल पिट से कर सकते हैं, बोरिंग से कर सकते हैं। तो ट्रायल पिट में क्या है, मुझे ओपन एक्सकेवेशन करना पड़ेगा, और ओपन एक्सकेवेशन में मुझे सैंपल्स कलेक्ट करने पड़ेंगे, उसका लेबोरेटरी टेस्ट होगा, और उसके जो रिजल्ट आएंगे उससे एनालिसिस होगा। तो उसके बाद होगा बोरिंग। तो बोरिंग में क्या है, बोरिंग में मुझे अप टू सम डेप्थ मुझे सैंपल कलेक्ट करने पड़ेंगे, बोरिंग करना पड़ेगा, बोरहोल क्रिएट करना पड़ेगा, और बोरहोल से मुझे सैंपल कलेक्ट करने पड़ेंगे। तो ये मेनली 2 मेथड्स है फॉर एक्सप्लोरेशन इन सॉइल। नाउ टाइप्स ऑफ बोरिंग है, तो बोरिंग में बहुत सारे टाइप्स है। तो जैसे अगर बोरिंग है, अगर बोरिंग इज द सिंपलेस्ट एंड कॉमन मेथड, वो हैंड अगर से भी होता है और मैकेनिकल अगर से भी होता है। देन वॉश बोरिंग भी बहुत अच्छी तरह से यूज होती है। जस्ट अ मिनट। નથી કરવાનું, નથી કરવાનું, ના ના નથી કરવાનું, નથી કરવાનું। ओके, सो ये अगर बोरिंग, देन वॉश बोरिंग, देन उसके बाद आएगा रोटरी ड्रिलिंग भी बहुत यूज, मतलब वेरी मच यूज मेथड इन फॉर सॉइल इन्वेस्टिगेशन। लाइक यहाँ पे अगर रॉक और सॉइल बोथ है, हमारे स्ट्रेटा ऐसा है, हमारे एरिया ऐसा है, वहां पे रॉक भी आ रहा है, हमें पता है, तो हमें रोटरी ड्रिलिंग कर सकते हैं, क्योंकि रोटरी ड्रिलिंग से रॉक में भी हम पूरा एक्सकेवेशन कर सकते हैं। तो इट इज यूज्ड, बट बहुत ही ग्रेवली सॉइल होगी, तो वहां पे ये रोटरी ड्रिलिंग में थोड़ा प्रॉब्लम होगा। तो बहुत ग्रेवली सॉइल में रोटरी ड्रिलिंग इतना यूज नहीं होता है। और उसके बाद होता है परकसन ड्रिलिंग। तो यहाँ पे क्या है कि चीजल और बीट है वो यूज होते हैं, और वो ग्रेवली और बोल्डरस सोल होती है, तो उसमें ये परकसन ड्रिलिंग होता है। तो ये टाइप ऑफ बोरिंग है। मेनली 2 मेथडोलॉजी है, ओपन एक्सकेवेशन एंड बोरिंग, एंड इन बोरिंग देर आर दिस टाइप ऑफ मेथड्स। ओके, नाउ मेथड्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सो मेथड्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन लाइक अब हमने ये देख लिया कि किस तरीके से करना है, ओपन एक्सकेवेशन, बोरिंग, ये सब देख लिया। अब उसके बाद के कौन से तरीके से होता है, तो 3 तरीके से होता है। एक जैसा है जियोफिजिकल मेथड्स, दूसरा है फील्ड इन्वेस्टिगेशन एंड लेबोरेटरी टेस्टिंग। अभी हम डीप में जाते हैं। पहले हमने इन जनरलाइज किया कि बोरिंग से और ट्रायल पिट से, बोरिंग में भी ये 3 टाइप है, तो ये जनरलाइज हो गया। अब ये सब चीज हो गई, चलो बोरिंग हमने डिसाइड कर लिया कि बोरिंग में करना है। तो अगर उसमें डीप में अगर हम देखें तो क्या डीप में जाना है, तो उसमें क्या है, तो 3 तरीके से होता है, जियोफिजिकल मेथड्स, फील्ड इन्वेस्टिगेशन एंड लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन। जियोफिजिकल मेथड्स मतलब ये नॉन इंट्रूसिव और नॉन डिस्ट्रक्टिव मेथड्स है। सिस्मिक रिफ्रैक्शन, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, मुझे ये सारी चीज, ये मुझे जियोफिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल की जाननी है, तो मुझे ये मेथडोलॉजी करनी है। यहाँ पे बोरिंग, ट्रायल पिट ऐसा नहीं है, पर मुझे अगर ये प्रॉपर्टीज जाननी है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी क्या है, ये चीज मुझे जाननी है, सिस्मिक रिफ्रैक्शन उसका कैसे हो रहा है, तो ये सब चीजों के लिए जियोफिजिकल मेथड इज नेसेसरी। नाउ अब बोरिंग डिसाइड हुआ है, बोरिंग से मुझे करना है, तो फील्ड इन्वेस्टिगेशन भी आएगा, लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन भी आएगा। फील्ड इन्वेस्टिगेशन की बात करूं तो फील्ड इन्वेस्टिगेशन में अगर बोरिंग से काम करना डिसाइड हुआ, तो मुझे डिसाइड करना है कि मुझे एसपीटी कौन सी डेप्थ पे करनी है, अनडिस्टर्ब सैंपल कौन सी डेप्थ पे करना है। तो ये एसपीटी टेस्ट है, फिर ये कोन पेनिट्रेशन वाला टेस्ट है, सीपीटी टेस्ट है, फिर ये प्लेटलोड टेस्ट है। ये सारी चीज फील्ड इन्वेस्टिगेशन में आएगी। और यहाँ फील्ड इन्वेस्टिगेशन के डेटा कलेक्ट करने के बाद जो सैंपल्स हम लेबोरेटरी में लाएंगे, तो लेबोरेटरी में उसकी सारी प्रॉपर्टीज
चेक होगी। इंडेक्स प्रॉपर्टी, इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज, सारी प्रॉपर्टीज लेबोरेटरी में चेक होगी। उसका शेयरिंग प्रॉपर्टीज, उसकी कंसोलिडेशन प्रॉपर्टीज, स्वेलिंग प्रॉपर्टीज, ये सब चीज लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन में आएगी। जैसे अब ये 3 हो गया, अब ये 3 को भी हम डिवाइड करेंगे। अगर प्रॉपर एक फील्ड इन्वेस्टिगेशन पकड़े तो फील्ड इन्वेस्टिगेशन में अगर हम डीप में देखेंगे तो फील्ड इन्वेस्टिगेशन में ऐसा है कि सबसे पहला टेस्ट स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट। तो स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट एसपीटी टेस्ट, यू गाइज हियर दिस वर्ड एसपीटी नंबर, एसपीटी एन वैल्यू। सो एसपीटी टेस्ट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टेस्ट एंड दिस टेस्ट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट सॉइल स्ट्रेंथ. It is carried out in regular interval, like if 1 मीटर पे मैंने किया, फिर मैं 2 मीटर पे किया, फिर मैंने 3 मीटर पे किया, इस तरीके से रेगुलर इंटरवल पे करना है। और स्ट्रेटा, चेंज ऑफ स्ट्रेटा अगर कहीं पे हो रहा है तो मुझे नोट करना है। तो ये टेस्ट पूरा इस तरीके से है। ये कोहेजनलेस सॉइल और मीडियम क्ले है ना, तो यहाँ पे एसपीटी टेस्ट वेरी मच यूजफुल एंड these results, SPT n value is extensively used in design of foundation, settlement analysis and liquefaction studies. So this is very common test and for every boring we have to conduct this SPT test. Now the second one is cone penetration test. This cone penetration test provides a continuous record of resistance offered by a soil to a cone pushed into it. Here in SPT we use this hammer and in cone penetration test we use a cone. So here cone is used and there are 2 types of cone penetration test: static cone penetration test, dynamic cone penetration test. Now load test is also field test, जैसे मैंने अभी आपको बताया पाइल लोड टेस्ट, प्लेट लोड टेस्ट। अगर मुझे सॉइल की कैपेसिटी तुरंत ही निकालनी है तो प्लेट लोड टेस्ट से मैं निकाल सकती हूँ। प्लेट लोड टेस्ट से मैं एक प्लेट, पर्टिकुलर एक साइज की प्लेट यूज करूंगी और वो प्लेट की साइज की कितनी कैपेसिटी आती है, कितने लोड पे वो कितना सेटल होता है, वो चीज को मैं पूरा एक्स्ट्रापोलेट करके मुझे मेरी फाउंडेशन साइज में कितनी एसबीसी मिलेगी वो मैं तुरंत निकाल पाऊंगी फ्रॉम प्लेट लोड टेस्ट। एंड पाइल लोड टेस्ट, मतलब पाइल लोड टेस्ट इसलिए करना है कि मैंने एक पूरा मतलब बोरिंग किया, पूरा इन्वेस्टिगेशन किया और मेरे पास एक पूरा एनालिसिस रिपोर्ट बना, उसके हिसाब से मैंने पाइल जो मुझे करनी है, जितने डाया की, जितनी डेप्थ की, उसके और जिस टाइप की करनी है उसके हिसाब से मैंने एक कैपेसिटी निकाली। वो कैपेसिटी का यूज करके मेरी पूरी पाइल डिजाइन हुई, मतलब कॉन्क्रीटिंग वो सब पूरा डिजाइन हुआ। अभी मुझे एक्चुअली वो कैपेसिटी मिल रही है या नहीं मिल रही है, एक्चुअली इफ आई गेटिंग दिस कैपेसिटी और नॉट, आई हैव टू चेक दिस एंड फॉर दैट रीजन पाइल लोड टेस्ट इज नेसेसरी। And that pressure meter test, dilatometer test, ये also these tests are also for field test. Now here there is figure of field test. In SPT there is hammer like this. In CPT there is cone shaped rod like this. Here PMT, it is for dilatometer test. नाउ स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन, अगर अभी स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट हम कॉमनली सब जगह पे यूज करते हैं, तो स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट का मैं आपको डिटेल में बताऊं कि यहाँ पे क्या होता है। जैसे मैंने ये पूरा बोर किया और मुझे इस डेप्थ पे एसपीटी एन वैल्यू क्या है वो चेक करनी है। ये हमारा पूरा स्प्लिट बैरल है, मतलब जैसे ये जो बैरल है वो अंदर जाएगा तो अंदर जाके ये बैरल में सॉइल कलेक्ट होगी, पर कितना पुश करने पे वो अंदर जा रहा है वो हमें काउंट करना है। वो जो ब्लोज है वो ब्लोज एसपीटी एन वैल्यू है, ये एनविल है, ये हैमर है। अभी नीचे 0.15 और 0.15 ये है। अभी पहले जब मैं उस डेप्थ पे रख रही हूँ और हैमरिंग स्टार्ट कर रही हूँ तो कितने ब्लोज पे वो अंदर गया, तो जो पहला 0.15 है उसको हम सिटिंग में कंसीडर करके उसको निग्लेक्ट करेंगे। उसके बाद के जो 0.15 है उसको मुझे एडिशन करना है तो मुझे एसपीटी एन वैल्यू मिलेगी। सपोज फॉर एग्जांपल पहले 15 सेंटीमीटर के लिए सपोज मेरे 5 ब्लोज गए, उसके बाद दूसरे 15 सेंटीमीटर के लिए मेरे 10 ब्लोज गए और उसके बाद तीसरे 15 सेंटीमीटर के लिए मेरे 12 ब्लोज गए। तो मुझे पहले 5 ब्लोज इग्नोर करने हैं। आई हैव टू इग्नोर दिस फर्स्ट 5 ब्लोज फॉर फर्स्ट 15 सेंटीमीटर एंड वी हैव टू एड
second 15 and third 15 centimeter blows for the SPTN value. So second 15 meter we have 10 blows, and for third 15 centimeter we have 12 blows. So we have to add 10 plus 12, that is 22. So our SPTN value for particular this depth is 22. You can see this in this figure, like first increment, this is second increment, and this is third increment, and for SPTN we have to add these two depths. Okay, after we get this, we have to apply some correction, like correction for overburden pressure, correction for water dilatancy, correction for energy ratio. So we have to apply this correction, and after that we can get some value of N, and we use this value in all the analysis of further. Now जैसे हमने यहाँ पे फील्ड टेस्ट के बारे में बोला था, फील्ड टेस्ट के बाद लेबोरेटरी टेस्ट है। तो लेबोरेटरी टेस्ट में अगर हम देखेंगे, लेबोरेटरी टेस्ट अभी पूरा फील्ड टेस्ट हो गया। जैसे मैंने बताया, फील्ड टेस्ट में कोई भी फील्ड टेस्ट होगा, वहां से हम सैंपल कलेक्ट करके लेबोरेटरी में लाएंगे और उसकी अलग दूसरी प्रॉपर्टीज हम चेक करेंगे। तो फील्ड टेस्ट मतलब एसपीटी किया, एसपीटी का सैंपल हमने कलेक्ट किया, अनडिस्टर्ब सैंपल लिया, अनडिस्टर्ब सैंपल हम लेबोरेटरी में लाए। तो ये सारे सैंपल हम जब लेबोरेटरी में लाए तो उसके लेबोरेटरी में कुछ टेस्ट होंगे। तो वो कौन से टेस्ट होंगे? तो पहला हमारा इंडेक्स प्रॉपर्टी टेस्ट, ये सबसे बेसिक टेस्ट है, इंडेक्स प्रॉपर्टी टेस्ट। ये टेस्ट हमें करना कोई भी सैंपल हो हमें ये टेस्ट करना जरूरी है। क्यों? व्हाई इट इज वेरी मच नेसेसरी? बिकॉज फ्रॉम दिस इंडेक्स property test we can identify the type of soil, we can identify proportion of soil. So we have to do this index property test. हमें index property test से पता चलेगा कि उसकी भाई लिक्विड लिमिट कितनी है, उतनी उसकी प्लास्टिक लिमिट कितनी है, उसमें ग्रेवल्स कितने हैं, उसमें सैंड कितनी है, उसमें क्ले पार्टिकल कितने हैं, उसमें सिल्ट कितनी है, ये सब चीज पता चलेगी। उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, उसका वॉइड रेशियो क्या है, फिर उसमें स्वेलिंग हो रहा है तो स्वेलिंग में क्या हो रहा है, ये सब चीज, ये सारी चीज इंडेक्स प्रॉपर्टी टेस्ट है। तो इंडेक्स प्रॉपर्टी टेस्ट is very basic test for any type of soil. Now the second is shear test. After index property we go for shear test. In shear test there are 4 types of test: direct shear test, triaxial compression test, unconfined compression test, and vent shear test. Now direct shear test, if I talk about detail in each test, then in direct shear test वो generally cohesionless soil में ज्यादा suitable है। triaxial कोहेसिव सॉइल, क्लेई सॉइल होगी तो ज्यादा सूटेबल है। अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट वो ट्राइएक्सल का ही एक पार्ट है जिसमें मुझे पूरा कन्फाइनिंग प्रेशर नहीं देना है, इसलिए वो अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट हो रहा है, वो भी क्लेई सॉइल के लिए है। और वेंट शियर टेस्ट, वेंट शियर टेस्ट वो बहुत ही सॉफ्ट सॉइल होगी, वेरी सॉफ्ट सॉइल जिसकी एसपीटीएन वैल्यू 2 जितनी होगी, 2, 3, तो वो सॉइल के लिए अगर मुझे शियर प्रॉपर्टी सॉइल की निकालनी है तो बाकी कोई टेस्ट से वो पॉसिबल नहीं होगा, तो वो उसके लिए वेंट शियर टेस्ट है। अभी डायरेक्ट शेयर टेस्ट, ट्राइएक्सल टेस्ट, उसमें भी 3 टाइप है। तो मेरा स्ट्रक्चर कौन सा है, वहां पे साइट कंडीशन क्या है, वो सब चीज देख के हम डिसाइड करते हैं कि हमें कौन सा टेस्ट करना है। जैसे अगर डायरेक्ट शेयर में करें तो कंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट है, अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट है और कंसोलिडेटेड ड्रेन टेस्ट है। वो सारे टेस्ट ट्राइएक्सल में भी है। और टाइप अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ टेस्ट, टाइम ऑफ टेस्ट कैन बी डिसाइडेड। मतलब अगर हमें अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट कर रहे हैं हम, तो उसमें टाइम बहुत कम लगता है, वो वेरी क्विक टेस्ट है। अभी मैं कंसोलिडेट करूंगी, कंसोलिडेटेड अनड्रेन में जाऊंगी तो टाइम ज्यादा लगेगा, और कंसोलिडेटेड ड्रेन करेंगे तो और ज्यादा टाइम लगेगा। तो वो सारे टाइप्स है। तो वो स्ट्रक्चर के टाइप्स पे डिसाइड होगा, साइट की कंडीशन पे डिसाइड होगा, और कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होगी उस पे डिसाइड होगा। उसके बाद आएगा स्वेलिंग टेस्ट। तो स्वेलिंग टेस्ट इज ऑल्सो वेरी मच नेसेसरी, और उसमें आएंगे स्वेल प्रेशर, एफएसआई और श्रिंकेज लिमिट। मतलब ये सारे को रिलेटेड है। मतलब अगर बहुत सारी स्वेलिंग वाली सॉइल है तो ये सारे टेस्ट के क्या रिजल्ट आएंगे, क्या उससे क्या होगा, वो सब चीज सब को रिलेटेड है। स्वेलिंग टेस्ट इसलिए नेसेसरी कि अगर अभी क्ले वाली सॉइल ज्यादा है तो वो उसकी स्वेलिंग प्रॉपर्टीज चेक करनी जरूरी है, क्योंकि स्वेल में क्या होता है कि अगर वो बहुत स्वेल वाली सॉइल होगी ना, तो जब इन समर ड्यू टू evaporation of water, soil may get shrink
एंड इन मानसून, मानसून में पानी बहुत आता है, तो वो सॉइल की एब्सॉर्बन कैपेसिटी भी ज्यादा होती है, तो वो सॉइल इतना पानी एब्सॉर्ब कर लेती है कि वो सॉइल स्वेल हो जाती है। अभी वैसी सॉइल पे अगर हमारा स्ट्रक्चर है, वो मानसून में स्वेल होगी और समर में श्रिंक होगी, तो उसके 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 लिए मतलब वो चीज की वजह से वहां पे हमारे फाउंडेशन में डिफॉर्म मतलब डिस्प्लेसमेंट आ सकता है, वहां पे सेटलमेंट हो सकता है, क्रैक आ सकती है और हमारा स्ट्रक्चर कोलैप्स भी हो सकता है। तो ये चीज ना हो, इसके लिए हमें पहले से ही सॉइल की स्वेलिंग प्रॉपर्टीज निकाल लेनी जरूरी है, कि अगर हमें पहले से ही पता चल जाएगा कि यहाँ इस डेप्थ पे सॉइल ऐसी है, तो हम प्रिकॉशनरी रेमेडीज पहले से ही कर लेंगे, तो आफ्टर कंस्ट्रक्शन कोई दिक्कत नहीं हो। उसके बाद हमारा परमेबिलिटी टेस्ट और डेंसिटी टेस्ट, ये भी हमारे लेबोरेटरी टेस्ट है, मतलब परमेबिलिटी टेस्ट करते हैं और डेंसिटी टेस्ट करते हैं। सो ये सारी चीज हो गई, सारे टेस्ट हो गए, जैसे मैंने बताया सब कुछ हो गया। उसके बाद ये पूरा एनालिसिस आ जाएगा ना, उसके बाद हमारे पास साइट इंफॉर्मेशन है, हमारे पास फील्ड डेटा है, हमारे पास लेबोरेटरी डेटा है, तो उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि कौन से टाइप का फाउंडेशन हमें यूज करना है, मतलब शैलो फाउंडेशन पे जाना है, डीप फाउंडेशन पे जाना है, शैलो में भी कौन से टाइप का यूज करना है, डीप में भी कौन से टाइप का यूज करना है। तो ये सारी चीज हमारी उसके बाद ही डिसाइड होगी। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये ओपन फाउंडेशन किया हुआ है, ये पूरा राफ्ट फाउंडेशन किया हुआ है, ये पूरा ऑफशोर स्ट्रक्चर में हुआ हुआ है, ये पाइल वाला फाउंडेशन है। तो ये सारे टाइप ऑफ फाउंडेशन डिसाइड होंगे आफ्टर दिस एनालिसिस। अब ये सब चीज हो गई, सब डिसाइड हो गया, सब एनालिसिस हो गया, सब हो गया। तो अब लास्ट हमारी जो चीज आएगी, वो आएगा सब सॉइल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। तो रिपोर्ट, ये सब चीज को कंपाइल करके हमें एक रिपोर्ट बनाना है, और वो रिपोर्ट पे ही पूरा, मतलब वो रिपोर्ट में हम जो चीज देंगे उसके हिसाब से ही पूरा डिजाइन सब कुछ होगा। तो वो रिपोर्ट हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ऐसा रिपोर्ट हमारा होना चाहिए कि उसमें सारी चीज इंक्लूडेड हो, मतलब कुछ भी चीज ऐसी नहीं हो कि वो हमें ना पता चले, किसी को भी पता चल सके, वैसा रिपोर्ट होना चाहिए। तो मेनली अगर मैं रिपोर्ट की बात करूं, तो 4 पार्ट्स में रिपोर्ट भी डिवाइड हो जाएगा। जैसे पहले प्रोजेक्ट डिटेल्स हमें देनी पड़ेगी, जैसे हमने वो रेकग्निशन स्टेज में किया कि सर्वे किया, पूरा डेटा कलेक्ट किया, तो वो प्रोजेक्ट डिटेल्स होगी। फिर हमारे टेस्ट रिजल्ट्स होंगे, रिजल्ट्स के एनालिसिस होंगे, एनालिसिस के बाद जो पॉसिबल सॉल्यूशन हम देंगे वो होगा, और जो रेकमेंडेशन होगा वो होगा। तो वो 4 पार्ट में डिवाइड है। फिर ये प्रोजेक्ट डिटेल्स मैंने बोला, तो उसमें डिटेल्स ऑफ फील्ड एक्सप्लोरेशन देनी होगी, सब डिटेल्स फील्ड एक्सप्लोरेशन की हमें देनी पड़ेगी, कि कितने डेप्थ का बोर किया, कितने नंबर ऑफ बोर कितने किए, वाटर टेबल कंडीशन क्या है, वो सब देना पड़ेगा। लोकेशन, इसके बाद रिपोर्ट में लोकेशन ऑफ बोरहोल्स और साइट का लोकेशन का भी एक हमें देना पड़ता है, कि यहाँ पे भाई हमारी साइट है, लोकेशन बोरहोल का ऐसा है, बोरहोल के आसपास, मतलब साइट के आसपास ये ड्रेनेज लाइन जा रही है, ऐसी ऐसी कंडीशन है, तो ये सब चीज आएगी। फिर सबसॉइल कंडीशंस क्या है, वो सब चीज आएगी। हमारा रेकमेंडेशन पार्ट आएगा, फाउंडेशन एंड कंक्लूजन, मतलब रेकमेंडेशन फाउंडेशन के लिए क्या है वो आएगा, फिर कंक्लूजन एक हम देंगे, और फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी सारे, मतलब टेस्ट के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, लेबोरेटरी रिजल्ट्स के बोरलॉग, वो सारी चीज पूरी आ जाएगी। ये सब चीज एक कंपाइल होगी, तो हमारा सब सॉइल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बनेगा। तो ये पूरा इस तरीके से ये सब चीज होनी जरूरी है, मतलब ये सब चीज कर ली, तो उसके बाद ये जो रिपोर्टिंग पार्ट है वो भी इतना ही नेसेसरी है। अब आपने पूरा ये लेक्चर सुना, तो आपको पता चला होगा कि ये सब चीज क्यों नेसेसरी है कंस्ट्रक्शन में। ये सारी चीज अगर नहीं, मतलब हम सॉइल इन्वेस्टिगेशन नहीं करें, तो बहुत प्रॉब्लम हो सकते, क्रिएट हो सकते ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन। तो हमें सॉइल इन्वेस्टिगेशन इसलिए ये सारी चीज जानने के लिए करना बहुत ही जरूरी है, और उसका यूज करके हम कंस्ट्रक्शन में हमारी प्रोजेक्ट कॉस्ट भी घटा सकते हैं, और फिर जो ये फ्यूचर कॉलेप्स हो रहे हैं, फ्यूचर डिफॉर्मेशन होते हैं, तो वो सारी चीज को भी हम कंट्रोल में कर सकते हैं। अभी तो बहुत सारी नई नई टेक्निक्स वगैरह सब कुछ बहुत कुछ आ गया है, तो वो सारे रीजन से अकॉर्डिंग, मतलब ये सारे रीजन से सॉइल इन्वेस्टिगेशन इज वेरी मच नेसेसरी इन कंस्ट्रक्शन। So for now that's it. Any question from your side? Thank you, ma'am, for a very good presentation. I think if there are any kind of the doubts from at least our department, the students will contact me. And if there are any kind of doubts, even students might have commented on Facebook.
Thank you. And we will be looking forward more kind of this webinars from your company. Even if there are any kind of the workshops, then please let us know so that we can go for the online workshops if it is possible. Okay, okay. I also want to like to thank you to all for this for listening me so silently. Actually, we don't give this link to the students because there are many students who will be joining and it will be very difficult to control them. That's Okay, why. okay, okay. No issue, no issue. Okay, Thank you. Thank you. okay. Thank you so much.